A very good morning to all of you. Today we are here to discuss about the syllabus of BA second year. BA second year, I mean to say third semester. As the third semester is here only. Now, the book which has been prescribed for Kurukshetra University, Kurukshetra, that is Fragrances. Now this book Fragrances, it includes 10 poems. इसके अंदर आपके पास 10 poems हैं. The very first poem which has been prescribed for your syllabus is Sonnet 18, which has been written by William Shakespeare. इसको William Shakespeare ने लिखा है. This poem has been dedicated to his friend. उन्होंने अपने फ्रेंड को डेडिकेट किया है, एंड थ्रू दिस पोएम ही जस्ट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट आर्ट रिमेन्स अलाइव फॉर एवर. आर्ट इज़ मॉर्टल. आर्ट जो है वो कभी नहीं मर सकती है. मीन्स द पर्सन रिमेन्स अलाइव थ्रू द पोइट्री. जो पर्सन है इवन वो भी पोइट्री के थ्रू जिंदा रहते हैं. And the second poem which has been prescribed in Fragrances, that is Know Then Thyself. इसके अंदर जो पोइट हैं वो ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि ट्राई टू नो योर सेल्फ, देन ट्राई टू नो अबाउट द मिस्टीरियस वेज ऑफ गॉड. भगवान के जो मिस्टीरियस तरीके हैं, जो उसकी जो लीला है, अगर आप उसको जानना चाहते हो देन ट्राई टू नो अबाउट योर सेल्फ. अपने अंदर झांको. ट्राई टू हैव एन इंट्रोस्पेक्शन. अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए. वाई आर यू एग्जिस्टिंग, वाई डिड यू टेक बर्थ. आपने जन्म क्यों लिया, आप क्यों आए. When you will be having the answers of all these questions, then try to find out about the ways of God, कि भगवान ये सब कैसे कर रहा है. And then third poem is Elegy written in a country churchyard. Now Elegy जो है वो एक ऐसी poem होती है which is written after someone's death, in memory of someone after his death. उनकी death के बाद जो है उनकी याद में जो poem लिखी जाती है, that's called Elegy. उसको Elegy बोलते हैं. And the next poem is The World Is Too Much With Us. This is a very famous poem which has been written by William Wordsworth. As we all know that William Wordsworth जो हैं, he is a nature poet. उन्होंने he has written almost each and everything about each and everything which is related to nature. जो nature से related है उन्होंने हर छोटी चीज़ पर लिखा है. फूल पर लिखा है, ट्री पर लिखा है, हर उस चीज़ पर, मतलब which is related to nature. तो The World Is Too Much With Us भी कुछ इसी तरह से पोएम है. और द नेक्स्ट पोएम इज़ ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न. ये एक ओड है जो कि ग्रीशियन अर्न का मतलब यहाँ पर एक कलश है. एक्चुअली देयर इज़ एन अर्न, एक अर्न है जिस पर बहुत सुंदर जो है कला जो है वो एक आर्टिस्ट ने दिखाई है. ही हैज़ ड्रॉन सम पिक्चर्स ऑन दैट अर्न, एंड द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड दोज पिक्चर्स इन हिज वर्ड्स. And the next poem is My Last Duchess. This poem has been written by Robert Browning in a score. Robert Browning ने लिखा है, and he is describing about his wife, about his first wife के बारे में वो बात कर रहा है. And he is telling to the messenger, उसके पास कोई messenger आया है after the death of his first wife for the proposal of remarriage. उन्होंने एक proposal लाए हैं, एक second उसकी marriage के लिए. तो he is telling him what are his expectations from the second wife or from the new girl who will come to his life. And the next poem is When You Are Old. It's a very simple poem. This has been written by a lover to his beloved. ये डेडिकेट कर रहा है एक लवर अपने डेडिकेट को, अपनी beloved को, कि when she will be old, what will be others reaction towards her. दूसरों के क्या reactions होंगे उसकी तरफ, and what will be his reaction as a lover when she will become old. जब old हो जाएगी तो उसके क्या reactions होंगे और दूसरों के क्या reactions होंगे. What kind of difference will be there. She will realize at that time. And
The next poem is where the mind is without fear. Now the poet is creating a situation, एक ऐसी situation, एक ऐसी जगह पर हमें ले जाना चाहता है where the mind will not get afraid of anybody or anything, anything. ना तो किसी चीज़ से डर होगा, ना किसी person से डर होगा. Now what kind of life that will be. And the next poem is ninth poem है. The next poem is Bengal Salads. It's a very simple poem, एक rustic सी poem है. Some Bengal sellers are there and they are going to sell their bangles to earn their livelihood, and you will come to know about different colors, and you will come to know about how the bangles जो हैं, जो बैंगल का कलर्स हैं, मतलब दे आर सिम्बॉलिकल. वो भी एक सिंबल है, वो दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग. वो जो कलर्स हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दे आर सम पर्टिकुलर बैंगल्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेज. जो अनमेरिड गर्ल्स हैं उनके लिए किस तरह की बैंगल्स होती हैं, या मैरिड हैं उनके लिए कैसी होती हैं, या हु हैव कंप्लीटेड द जर्नी ऑलमोस्ट, उनके लिए कैसे कलर्स जो हैं वो डेडिकेट किए हैं पोएट ने. आप यू विल come to know about all these things. And next, the 10th poem is Another Woman. Another Woman, it's a story about you and me. I mean, it's a story about an Indian woman. वो एक Indian woman के बारे में story है कि whatever the character is suffering, जो भी उस poem के अंदर character है जो सफ़र कर रही है, it's a story of another woman. मतलब ये हर औरत की कहानी है. हर औरत को जो है स्टेज से कहीं ना कहीं क्रॉस करना ही पड़ता है. दिस वॉज समथिंग अबाउट द लिटरेरी पोर्शन. ये एक लिटरेचर का पोर्शन था जिसके बेसिस पर आपको एज यू नो यू विल हैव टू एक्सप्लेन द रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट आपको करना होगा. एंड देन 6 क्वेश्चंस विल बी देयर. 6 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 1 वर्ड के अंदर रिप्लाई करना है. एंड देन 2 क्वेश्चंस विल बी देयर. यू विल हैव टू एक्सप्लेन इन 100 वर्ड्स जो 6 मार्क्स के होंगे. एंड देन देयर विल बी एन ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जो 12 मार्क्स का होगा. चॉइस के साथ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका, मतलब दिस वाज समथिंग अबाउट द लिटरेचर. ये लिटरेचर के बारे में था. अभी हम ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स आपके पास होंगे. जैसे 4th क्वेश्चन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रामर, वो ग्रामर से रिलेटेड है. एंड 4th का जो ए पार्ट है दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स. ये आपका 15 मार्क्स का रहेगा. जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर यू विल हैव टू फिल सम ब्लैंक्स. आपको कुछ ब्लैंक्स फिल करने होंगे. जैसे इनफाइनाइट हो सकते हैं, इन्फिनिटिव्स हो सकते हैं, जिरंड हो सकते हैं, पार्टिसिपल हो सकता है कि आपको 2 फिल करना है, या 2 + V1 फिल करना है, या ING करना है, या V3 करना है. तो यू विल हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स. एंड सेकेंड पोर्शन जो इसी का रहेगा वो प्रपोजिशन है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं. And then once again some blanks are there. कुछ pronoun मिसिंग हो सकता है, नाउन फिल करना हो सकता है, कहीं पर pronoun मिसिंग हो सकता है. यू विल हैव टू फिल द pronouns. एंड देन नेक्स्ट फिर से ब्लैंक्स हैं जिसके अंदर कुछ यू मे बी आस्क्ड टू फिल सम सफिक्सेस. एंड कुछ वर्ड्स दे दिए जिसमें आपको सफिक्सेस लगाने हैं या आपको प्रीफिक्सेस लगाने हैं. उसके बाद जो है आपको रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस लिखा होगा कि आपको रीराइट करना है. कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे ब्रैकेट के अंदर कि इसको यूज़ करके आप इसको रीराइट कीजिए, फिर से लिखिए. 4th जो पार्ट है ये सारा जितना भी हमने डिस्कस किया दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स. ये 15 मार्क्स का होगा. एंड इसी का जो बी पार्ट है उसके अंदर कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं. 2 जो हैं लिटरेरी टर्म्स आपके पास आ सकती हैं. एंड दैट विल बी ऑफ 6 मार्क्स. वो 6 मार्क्स ही हैं. कुछ एक टर्म्स हैं जो यू विल हैव टू गो थ्रू दोज लिटरेरी टर्म्स एंड यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. और 2 ही आएंगी, 6 मार्क्स की होंगी. एंड देन द नेक्स्ट जो पार्ट होगा 4th क्वेश्चन का सी पार्ट होगा दैट इज़ रिलेटेड टू फोनेटिक्स. फोनेटिक्स से रिलेटेड है. यू विल हैव टू ट्रांसक्राइब सम वर्ड्स जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट ईयर में भी आपने ट्रांसक्रिप्शन सीखा है, स्ट्रेस सीखा है.
और उसके बाद जो है डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर यू मे हैव टू सॉल्व सम सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, 4 मार्क्स के हो सकते हैं। एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी अबाउट द एसे और पैराग्राफ राइटिंग हो सकती है, कि कुछ भी जनरल से टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे सपोज करो वैल्यू ऑफ गेम्स दे दिया, पंचुअलिटी दे दी, या रिलीजन एंड स्टूडेंट्स हो गए, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हो गया, या पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट्स हो गए, दैट में बी रिलेटेड टू द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन है, या को एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी सब ने कोरोना को फेस किया, कोविड-19 को फेस किया, तो कुछ भी उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो any general topic may be there, and the whole paper will be of 80 marks, 80 marks का रहेगा। and टाइम जो allot है वो as you all know that it will be of 3 hours, so 3 घंटे का रहेगा। आई होप द होल सिलेबस इज़ क्लियर टू यू, आपको ये सिलेबस क्लियर हो गया है। एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस। See you in the next video. Okay, bye bye.